Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 6, Life Process. Previous time we have read meaning of life process. Now we will start next topic, nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. यानी कि हमें किसी वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substance needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. जो फूड हम लेते हैं वो हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं, जिससे हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं अपने लाइफ की वो कंप्लीट करते हैं. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? कैसे जो लिविंग थिंग्स हैं अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. The general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. जो कुछ ऑर्गेनिज्म है अपना जो फूड है वो सिंपल मटेरियल से लाइक एज CO2 एंड वाटर के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं. These organisms the autotrophs, और वो ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉफ्स है, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. इसमें ऑटोट्रॉफ्स में कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं. Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to break down into simpler ones before they can be. Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. Heterotrophic में हम एनिमल्स को और फंजाई को इंक्लूड करते हैं. एनिमल्स भी हेटरोट्रॉप्स में हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी हेटरोट्रॉप्स में इंक्लूड हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि प्रीवियस क्लासेज में आपने रीड किया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. सिंपल वे में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, यानी कि जो लीफ होती है लीफ में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल सनलाइट में CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में वाटर से ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनती है. इसलिए ये प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं. Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of the energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water. जो कि ये रिएक्शन है CO2 प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल होता है, उससे ग्लूकोज प्लस O2 बनती है, which is converted into carbohydrate and glucose in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, carbohydrates are utilized for provide energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. प्लांट में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड है ह्यूमन बीइंग्स में है ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है. We serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in as where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Okay, तो हमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है. ये जो रिएक्शन है इसके बारे में कह रहा था बार बार में कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है CO2 प्लस वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंट में सनलाइट
क्लोरोफिल तो लीफ में होता ही है। सनलाइट के प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस O2 प्लस वाटर इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। ग्लूकोज हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज के ग्लूकोज हम लेते हैं अपने खाने में, तो इसलिए प्लांट की जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन वैसे ही मोस्ट है क्योंकि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बैलेंस इक्वेशन में जो दी हुई है इक्वेशन, उसके लिए भी अगर आपको आए कि CO2 प्लस वाटर इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इसको बैलेंस करना है तो आप वैसे भी लर्न करें और इसको बैलेंस करना भी सीखें। Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की उसमें डिफरेंट जो ये इंसिडेंट्स हैं जो occurs होती हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है क्लोरोफिल से। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और वाटर का मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है, यानी कि वो ब्रेक डाउन होता है H2 और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट बनता है जैसे ग्लूकोज। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take off carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Let us see how each of the components of the above reactions are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, shown in 6.1, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast. जो green dots हैं leaf में, it is called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लोएम जाइलम है, स्ट्रक्चर्स हैं ये, वैक्सी क्यूटिकल होती है जो ऊपर लेयर है लीफ में, ये अपर एपिडर्मिस है, जो डॉट्स हैं ग्रीन डॉट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट है, बीच बीच में एयर स्पेसेज हैं, ये गॉड सेल्स हैं। गॉड सेल्स अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गॉड सेल्स का क्या फंक्शंस है। स्टोमेटा क्लोज और ओपन होने में इनकी इंपॉर्टेंस रोल होता है गॉड सेल्स का। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। इसके बाद में ये एक एक्टिविटी है, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेजिटेटेड लीव, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन्स, यानी कि एक हेल्दी लीव लेते हैं। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। एक हेल्दी प्लांट लेते हैं, उसकी लीफ लेते हैं और फिर उस प्लांट को डार्क रूम में, लाइट नहीं हो, 3 days के लिए रखते हैं। दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज अप, जिससे कि उसका कंप्लीटली जो स्टार्च है उसका यूज हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours, और अब प्लांट्स को 6 hours के लिए सनलाइट में रखते हैं। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, और एक लीफ इस प्लांट से तोड़ते हैं। मार्क द ग्रीन डॉट्स एरियाज इन इट, और इसके जो ग्रीन एरियाज है उसको मार्क करते हैं। इट इन एंड ट्रेस ऑन ए सीट पेपर, और सीट पेपर से इसको ट्रेस करते हैं। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स, और इस लीफ को कुछ हम डिप करते हैं बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में। आफ्टर दिस इमर्स इन इट इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, अब इसे इमर्स करते हैं, डुबोते हैं एक बीकर में जिसमें कि अल्कोहल है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं केयरफुली और देखते हैं बीकर को बॉयल करते हैं और वाटर बाथ से धोकर इसको अल्कोहल को हीट देते हैं जिससे कि अल्कोहल बॉयल करने लगे। व्हाट हैपन टू कलर द लीफ, तो क्या कलर का जो लीफ है, जो लीफ का कलर है उसमें क्या चेंजेज होती है। व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन,
नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स। और अब इस लीफ को हम आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। टेक आउट द लीफ एंड अब इस पे आयोडीन सॉल्यूशन को आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब कलर का ऑब्जर्वेशन करते हैं पहले की कंपेरेटिवली कैसा चेंजिंग होती है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वेरियस जो एरियाज है प्लांट के, जो लीफ के, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं जब आयोडीन सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं तो जो हमारे ट्रेस किए होते पेपर से वो एरियाज कलर में चेंज हो जाते हैं और वो वायलेट कलर में चेंज हो जाते हैं। ये जो चेंजिंग कलर है ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस को शो करते हैं। ओके, इसके बाद में now let us study how the plants obtain carbon dioxide in class 9. We had talked about stomata which are tiny pores present in the surface of leaves. हम जानते हैं कि टिनी स्टोमेटा होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पर। Massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. और जो गैसीय एक्सचेंज होता है इन्हीं पोर से होता है और फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं से होता है। But it is important to note that here that exchange of gases occurs across the surface of stems, root and leaves as well as जो गैसीय एक्सचेंज है लीफ के अलावा स्टेम है, रूट्स हैं और लीव्स के सभी जो पार्ट्स है उससे होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा और काफ़ी मात्रा में बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर का लॉस इन्हीं स्टोमेटा से होता है। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डिड नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स अपने पोर्स को जब क्लोज कर लेते हैं जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज फंक्शन ऑफ द गॉड सेल्स। और स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना गॉड सेल्स पर डिपेंड करता है, ये इसका मेन फंक्शन भी होता है। इसके बाद में द गॉड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जो गॉड सेल्स हैं वो फूल जाती हैं, स्वेल अप माने फूल जाना, व्हेन जब वाटर इसमें एंटर करता है, कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन और इसके कारण जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गॉड सेल्स श्रिंक। और इसी प्रकार सिमिलरली इसी तरह से जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं जब वाटर गॉड सेल्स श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। एक आपसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जो लीफ होती हैं चाहे फाइकस हो चाहे पीपल हो चाहे वो नीम हो, आप ऑब्जर्व करते हैं इनके जो डॉर्सल लीफ और वेंट्रल लीफ है। डॉर्सल लीफ हम कहते हैं प्लांट की जो लीफ है उसका जो ऊपरी जो अपर लेयर है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल लीफ। वेंट्रल लीफ हम बोलते हैं उसके जो लोअर पार्ट को बोलते हैं। ये ऑब्जर्व किया हमने कि जो उसका डॉर्सल लीफ पार्ट, डॉर्सल जो पार्ट है, जो ऊपरी जो पार्ट है वो हमेशा डार्क ग्रीन होता है और जो लोअर पार्ट है वो हमेशा लाइट ग्रीन होता है। ये आप कभी भी ऑब्जर्व करना जब लीफ देखते हैं। इसका एक सिंपल रीजन है कि जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं डॉर्सल पार्ट में, इसलिए वाटर लॉस मैक्सिमम भी डॉर्सल पार्ट से होगा, इनके अपर पार्ट से होगा। इसलिए हमेशा जो प्लांट की जो लीफ है उसका अपर पार्ट है वो डार्क ग्रीन होता है। ओके, इसके बाद में ये एक्टिविटी है, टेक 2 healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days. दोनों प्लांट हैं, इनको 3 days के लिए हम डार्क रूम में रखते हैं। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट और ग्लास प्लेट से इनको कवर करते हैं। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन द प्लांट्स। और एक प्लांट्स में हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। कवर विद द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स और इन्हें बेल जार से कवर करते हैं हम। इसके बाद में फिगर के अकॉर्डिंग यूज वैसलिन टू सील द बॉटम और बॉटम को सील करते हैं वैसलिन से, कोई एयर इसमें ना आए, सो दैट द सेटअप द एयर टाइट
कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, और सनलाइट में 2 आवर्स के लिए रखते हैं। प्लग के लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और प्रत्येक जो प्लांट्स में से हम प्लग करते हैं लीफ को और स्टार्च की प्रेजेंट का टेस्ट करते हैं। एंड अबोव द एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या दोनों में अमाउंट ऑफ स्टार्च है, जो अमाउंट है स्टार्च का सेम रहता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हम इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए, based on the 2 activity performed above, can we design an experiment to demonstrate the sunlight essential for photosynthesis। ये एक्टिविटी शो करती है कि सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए सनलाइट इसेंशियल है, जरूरी है। सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर building their body। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants। वाटर का यूज फोटोसिंथेसिस में जो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है, जो स्थलीय जो पौधे हैं, जमीन पे जो उगने वाले पौधे हैं, उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट सोयल से फुलफिल होती है, इनकी पूरी होती है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोयल, और अदर मटेरियल्स हैं वो सोयल से ऑब्टेन करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। नाइट्रोजन प्रोटीन्स के लिए और अदर कंपाउंड्स के लिए एसेंशियल है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल। वहाँ हमने पढ़ाया भी था आपको कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों एसेंशियल है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन से हमारी बॉडी है जो एमिनो एसिड्स हैं वो कम्प्लीटली, जो हमारी बॉडी होती है वो एमिनो एसिड से बनी होती है, और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन के बनने में नाइट्रोजन के इम्पोर्टेंस रोल है, इसलिए जो नाइट्रोजन है हमारे लिए एसेंशियल है, हमारी बॉडी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि दाल जो होती हैं, पल्सेज जो होती हैं हमारे खाने में हमें ज़्यादा लेनी चाहिए क्वांटिटी में। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ inorganic nitrates or nitrites, or the taken up inorganic compounds which have been prepared by the bacteria from atmospheric nitrogen। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको जो बैक्टीरिया है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और वो हमारे लिए एक्चुअली में जो लेग्यूमिनेसी जो प्लांट है, 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लेग्यूमिनेसी जो प्लांट है उनकी जो रूट होती है उनमें नोड्यूल्स होती हैं, और उन नोड्यूल्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के कंपाउंड्स में चेंज करता है, और उससे हमें वो उस फॉर्म में हम हमारे खाने में उनको लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है प्रोटीन की फॉर्मेशन में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।